Good morning, boys and girls. Boys and girls, today we will continue with our first chapter, The Lost Child. Okay? So, there we are. We'll continue with The Lost Child, as I said. Now, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. So, as they came closer and closer to where the big fair was being held, there were many footpaths, and all the footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. So all the throngs were full of people, more and more crowd full of people, and all were coming to one spot. And that is what is a whirlpool, where everything was going, moving round and round of the fair, and felt at once repelled and fascinated. And at once he felt that he could not get away with it. He was fascinated with the confusing of world he was entering, and it was for him very confusing. He could not understand. Hundreds and thousands of people from all the different ways were coming to one spot, and it was so beautiful and colorful. A sweetmeat seller hawked. Now he could see a sweetmeat. Sweetmeat means person who sells sweets. Okay, and what was he selling? Hawk means he was moving about, or he was perched in one place and selling. And he was selling gulab jamuns, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. So there was a man who was selling, there was a shop where you were getting all the sweets. Like during Deepavali and Dashera, you can find all the sweet shops. They display all the sweets outside the shops, and they make it like a step on which, that was the architecture, and on which they make step and they keep the sweets. So you can see all the sweets on different steps at one glance. So this is what this boy was seeing, and there were many people crowded around his counter. All were buying, and he decorated them with silver and gold leaves. The child stared open eyed. He stared at all these lovely sweets. Anybody can get fascinated with gulab jamuns, barfis, and jalebis, and this boy too. And his mouth watered. You know, we all love when we talk about sweets or we see. It's obviously our mouth will water. Nobody can resist. Nobody can say, oh, I don't like. Everybody loves to eat sweets. For the barfi, that was his favorite sweet. Oh, even for me. I just love barfis and laddus. I want that barfi, he slowly murmured. He said very slowly to himself, I want that barfi. But he half knew, as he begged, that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So he murmured, he told himself, I want that barfi. But he knew that his parents would not buy for him, as though they don't have money. They did not have money. And then they would say, you are so greedy. We always give you barfi. Don't be so greedy. Keep on walking. So without waiting for an answer, he moved on. Then he moved on to the next hawker. And that fellow, the other fellow, was selling flowers. A garland of gulmohar or garland of gulmohar. So he was selling flowers. Garland means mala. गुलमोहर के फूलों की माला. द चाइल्ड सीम इरेजिस्टिबली ड्रॉन. और वो बच्चे को देखती साथ वो उसकी तरफ जाने लग गया, रंग बिरंगी गुलमोहर के माला देख के. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप एंड हाफ murmured. So he went again close to that basket, and he told himself, I want that garland. That child, you know, children are attracted to anything. And what and when they would like to have, we don't know. So he also wanted. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers. He knew that his parents would say, no, no, no needs. Why you want the garlands?
because they would say that they were cheap, and they would say, no, no, they are so cheap, they will get spoiled soon, they are not nice for you. So without waiting for an answer from the parents, he moved on. Then next, he saw a man, and that man had a pole, a bamboo stick, and on that he had beautiful, colorful balloons, like we have even in our town or whenever we have a mela. Red, green, blue, yellow, purple, all color balloons, the gas balloons were flying. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. And this child, when he saw so many balloons, he had a desire, काश ये पूरे के पूरे मैं खरीद सकता हूँ, ये पूरे मेरे हो जाएं. That is what he had. But again, same thing, he well knew his parents would never buy him the balloons, because they would say he was too old to play with such toys. So they would say, now, अब तुम बड़े लड़के हो गए हो, फुग्गे से खेलोगे, छोटे बच्चों के लिए है वो. So he walked on farther. अब वो चुपचाप चले गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. So after this he saw one man. आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जब एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें हम नाग पंचमी का त्यौहार बनाते हैं, उसमें कई सांप, नाग पंचमी में जो लोग होते हैं वो नागों को बास्केट से दिखाते हैं और वो बीन बजाते हैं. तो वो लड़का देख के और उसकी तरफ जाने लग गया. वो देख रहा था कि किस तरीके से सांप जो बास्केट में था वो पूरा गोल घूमा हुआ बैठा था और वो बाहर था आधा, फन फैला के बैठा रहा, बिल्कुल इस टाइप से. यहाँ उसकी तुलना, उसके जो गले की तुलना कर रहे हैं स्वान से कर रहे हैं. स्वान जो बतख होता है, बतख के जैसे उसका सांप का रुख बदला हुआ है, बिल्कुल वैसे ही वो दिख रहा है. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो म्यूज़िक बजा रहे हैं, मगर उसके माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते कि जो बच्चा है वो ना इस टाइप की म्यूज़िक सुने जो बीन की आवाज़ होती है, क्योंकि वो किसी को भी मोहित करने लगती है, खूब तेज़ कानों में लगती है. तो उसके माँ बाप नहीं चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ जाता है. There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. उसने देखा कि सब की सब गोल घूमे जा रहे हैं, मतलब एक गोला बन गया है और लोग गोल गोल जा रहे हैं भीड़ में और खूब आवाज़ें हो रही हैं, हंसने की, चीखने की, चिल्लाने की. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. अब उसने देखा कि एक वो है, आपने देखा होगा तो झूला होता है जिसको हम मैरी गो राउंड रहते हैं, गोल गोल जा रहा है, उसमें लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, हंस रहे, आवाज़ कर रहे और वो गोल गोल घूम रहा है. आपने देखे होंगे हर मेले में लगता ही है वो, ठीक है. जैसे हमारे हृदय नगर का मेला होता है तो उसमें आपने देखा होगा वो बहुत बड़ा सा एक गोला वाला झूला होता है जिसमें आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते हो गोल गोल. फिर उसने बोला अपने माँ बाप को, वो अब ज़िद करने लग गया. बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब वो ज़िद करने लग गया कि मुझे उसमें जाना है. अब देखो माँ बाप ने क्या करा. 4th पेज में देयर वाज नो रिप्लाई. उन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. उसने मुड़ के देखा, अरे यार मैं इतनी बोल रहा हूँ, ज़िद कर रहा हूँ, ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे. They were not there ahead of him. जब वो मुड़ के देखा तो उसके माँ बाप वहाँ थे ही नहीं उसके आगे. अब वो देख रहा कि वो गए कहाँ. He turned to look on either side. वो इधर उधर सब जगह देखने लग गया. They were not there. और उसके माँ बाप वहाँ थे ही नहीं. अब लड़का बिल्कुल अकेला. He looked behind. वो पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर भी उनका कोई मम्मी पापा का कोई आसपास में कोई वो था ही नहीं. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood,
crying in real fear. अब वो देखा माँ बाप नहीं दिख रहे हैं और ये छोटा सा बच्चा जोर जोर से चीख के रोना शुरू कर दिया। उसका गला सूख गया और जो वहाँ खड़ा था जहाँ, वहाँ से वो दौड़ने लग गया इधर उधर पागलों के जैसे है। Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce, to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. अब वो चीख रहा, चिल्ला रहा, रो रहा है, उसके आंख में से आंसू निकल रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है। वो अब वो मेले में बिल्कुल अकेला और घुम गया है। द चाइल्ड इज लॉस्ट। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. अब उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है और वो घबराहट उसके चेहरे में भर गया है। पैनिक स्ट्रिकन, और वो इतना घबरा गया, डर गया, वो इधर उधर भागने लग गया। He ran to one side first, then to the other, hither thither in all direction. वो हर डायरेक्शन में इधर उधर दौड़ने लग गया। अब उसको मेले में कोई मिठाई, कोई फुग्गे वाला, कोई सांप वाला कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस वो भीड़ में इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर रो रहा है, चिल्ला रहा और इतना शोर हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। His yellow turban came untied and his clothes become muddy. उसने जो एक पगड़ी पहना था पीली कलर की, वो पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े पूरे मटमैले हो गए, क्योंकि वो इधर दौड़ रहा, कभी गिर रहा, कभी उधर गिर रहा, रो रहा, पूरा गंदा हो गया। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब वो इधर उधर दौड़ दौड़ के थक गया और हार गया। अब वो एक जगह खड़े हो गया और जब वो चीख चीख के रो रहा था, उसका गला सूख गया। अब वो केवल सिसकियाँ ले रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर ताकत ही नहीं बची और चिल्ला के रोने की। आप लोग कैसे चिल्ला के रोते हो या आप लोग अच्छी तरह जानते हो, सब बच्चे किसी न किसी समय पे ऐसे रोए होंगे। At little distance on the green grass he could see through his flimsy eyes men and women talking. अब वो थोड़े दूर में देखा, घास पे कुछ लोग बैठे हैं, देख रहे हैं उसकी तरफ, वो आपस में बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने देखा जहाँ लोग बैठे थे घास में, इतने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, उसने कोशिश करा कि वहाँ देखें, अपनी आँखों से देख रहा था, उसकी आँख में आंसू भरे थे। वो देख रहा था कि कहीं उसके माँ बाप दिख जाएं। वहाँ लोग बैठे, वो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, मज़ा मस्ती कर रहे हैं, मगर उनके बीच में इसके माँ बाप नहीं थे। He ran quickly again, this time to a shrine of which people seemed to be crowding. अब वो एक ऐसी जगह दौड़ा, एक मंदिर की तरफ दौड़ा और वहाँ पर और भी लोग भीड़ मचाए थे, तो वहाँ दौड़ा वो। Every little inch of space here was congested with men. हर इंच पे लोग, ऐसी खचाखच भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। But he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. अब वो दौड़ रहा है, लोगों के पैरों को खूंदते हुए वो आगे बढ़ रहा है, मम्मी डैडी कर रहा है और वो रोए जा रहा है। Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. जैसे जैसे वो मंदिर के दरवाजे के पास आया, वहाँ भीड़ और घनी हो गई और बहुत सारे और लोग ऐसे धक्कम धुक्की दे रहे थे वहाँ पर। ठीक है, वो किसी तरीके से भीड़ में वहाँ पर पहुँचा। Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders, और वहाँ पर लोग ऐसे दिख रहे थे उसको, आदमी लोग ऊंचे, पूरे, मोटे, तगड़े, और उनकी आंखें ऐसी लाल जैसे कि वो खून कर देंगे इसका। वो डर रहा था उनको देख के, और उनके जो शोल्डर थे वो ऐसे चौड़े चौड़े कंधे वाले लोग थे, आदमी सारे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot
and he not shrieked at the highest pitch of his voice. अब वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो हाइट में कम था, वो छोटा बच्चा था, सब लोग ऊंचे ऊंचे, वो सिर्फ उनके पैर देख सकता था, और वो लोगों ने उसको ऐसे धक्के और ऐसे लात मारे, कई लोगों ने तो उसको दबा दिए, मतलब उसके दबा के कुचल के उसके ऊपर से चले गए। वो चीखा चिल्लाया मम्मी पापा करके। A man in the surging crowd heard his cry and stooped with great difficulty lifted him up in his arms. अचानक एक आदमी की नज़र उस पे पड़ी, वो चीखा चिल्लाया, उसके ऊपर से लोग जाने लगे, उसको दबाने लगे, कुछ लोग ने तो उसके पैर रख दिए उसके ऊपर। जब वो खूब ज़ोर से चीखा चिल्लाया रोया तो एक आदमी ने अचानक एक आदमी की नज़र पड़ी, वो जल्दी से बड़े मुश्किल से झुका, भीड़ में से उसको खींच के निकाल के अपनी गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट योर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? तो उसने बोला अरे तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टर्ड क्लियर ऑफ द मास। वो आदमी ने उससे पूछा और भीड़ में से उसको निकाल के बाहर लाया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर, हाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो बच्चा और जोर जोर से चीख चीख के रोने लग गया। एक तो लोगों ने उसको वैसे ही दबा दिया, ऊपर से वो डरा हुआ, और उसके ऊपर से उसको अपनी माँ बाप की याद आ रही, बस वो रो ही जा रहा और कह रहा मम्मी चाहिए पापा चाहिए। अब वो छोटा बच्चा, द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब लड़का आदमी उसको गोद में लेके गया झूले के पास कि उसको झूला झुलवा दें ताकि वो रोना बंद करे। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? वो बोला क्या तुम घोड़े पे बैठोगे, इस पे बैठ के गोल गोल घूमोगे? और उसने प्यार से उससे पूछा, उसके पास जाके द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted I want mother, I want father। जैसे वो वहाँ गया तो वो बच्चा और ज़ोर से चीख चीख के रोने लग गया और कहने लगा नहीं मुझे केवल मम्मी और पापा चाहिए। अब वो बड़े परेशान, आप देख सकते हो बच्चा रो रहा है और एक आदमी उसको चुप करा रहा है, और कितनी भीड़ है, सांप वाला भी दिख रहा है, कितनी भीड़ है आप देख सकते हो। वो गोल घूमने वाली फुग्गे भी हैं और वहाँ पर एक वो भी है मैरी गो राउंड जिसमें लोग बैठे हैं, कितनी भीड़ आप देख सकते हो। यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिया है आपके मोबाइल स्क्रीन्स पे। अब हम आगे बढ़ेंगे। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double pitch strain, I want my mother, I want my father। अब वो आदमी उसको ले गया कहाँ, वहीं जहाँ वो सांप वाला था, और उसने बोला देखो कितना अच्छा वो बजा रहा है, सांप को देखो। तो वो अपने कान बंद कर लिया और चीख के चिल्ला के अपनी आवाज़ पे, नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, इसको सांप नहीं चाहिए, सांप नहीं देखना। वो आदमी उसको बैलून वाले के पास ले गया और बोला लो बेटा बैलून ले लो, है ना। The man took him near the balloons, thinking bright colors of the balloon could distract the child's attention and quieten him। उसको लगा ये बैलून देख के, फुग्गे रंग बिरंगे फुग्गे देख के शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked। उसने उसको बड़े प्यार से मतलब उसको बड़ा शांत करते हुए पूछा तुमको एक रंग बिरंगी बैलून ले दूँ? The child turned his eyes from the flying balloons एंड जस्ट सॉफ्ट। उस लड़के ने अपना मुंह मोड़ लिया फुग्गे से, बोला नहीं मेरे को फुग्गा नहीं चाहिए, और वो रोने लग गया, मम्मी पापा कहने लग गया। द मैन स्टिल ट्राई टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब आदमी बोला कि चलो इसको कहीं और ले जाऊं, खुश करूं। बोर्ड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। उसको वहाँ ले गया गेट पे जहाँ वो फूल बेच रहा था गुलमोहर के। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। उसने बोला देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है फूलों से, क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गले में पहनोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वांट मदर, आई वांट फादर। उसने वो बास्केट की तरफ से अपना चेहरा एकदम हटा दिया और रोने लग गया और कहने लगा नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो आदमी ने सोचा अब एक काम करो उसको कुछ मिठाई दिला दूँ। द मैन टुक हिम टू द कॉर्नर ऑफ द स्वीट शॉप। इसको वहीं ले गया, वही काउंटर पे स्वीट शॉप के। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस
from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब वो बच्चे को बोला, देखो कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, तुम कौन सी वाली मिठाई चाहिए बोलो। लड़के ने अपना मुंह वहाँ मिठाइयों से मुंह मोड़ लिया और रोने लगा और कहने लगा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने मम्मी और पापा चाहिए। तो ये रही कहानी। मुल्क राज आनंद जी ने ये लिखा है, उनके राइटर हैं। आपने इसमें देखा होगा एक लॉस्ट चाइल्ड है, किस तरीके से जब वो अपने माँ बाप के साथ था तो उसको हर चीज़ चाहिए थी। जो भी चीज़ वो देख रहा था उससे फैसिनेटेड हो रहा था, उसके मुंह में पानी आ रहा था, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उसे हर चीज़ चाहिए था। जब तक उसके माँ बाप उसके साथ थे उसको हर चीज़ में आनंद उठा रहा था, हर चीज़ की चाहत थी। और जैसे वो अपने माँ बाप से दूर हो गया और उसको उसके बाद वो हर चीज़ मिलने लगी, तब उसने उस चीज़ों से मुंह मोड़ लिया और उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस स्टोरी से हम यही चीज़ सीख सकते हैं कि आज हमारे माँ बाप हमारे साथ है तो सारी खुशियाँ हमारे साथ हैं। और आज जो माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, आज हमारे साथ हैं, तो आज हमें उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, हमें उनकी बातें सुनना चाहिए, हमें ज़िद नहीं करना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को। हमें अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए। मान लो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, या आज नहीं तो कल हमारे माँ बाप हमारा साथ छोड़ देंगे। जैसे आज मुझे देख लो, ना मेरे पिता हैं ना मेरी माता है, मगर मुझे हर चीज़ का एहसास होता है। और आज जो चीज़ें मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में, अब उन चीज़ों का मेरी ज़िंदगी में कोई मोल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आज आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आप ज़िद करते हो। और जाहिर सी बात है, हर बच्चा ज़िद करता है और माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को हर खुशी दें। मगर जो माँ बाप अपने बच्चों को चीज़ें नहीं दे सकते हैं, तो हम बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हमें ज़िद नहीं करना चाहिए, हमें मम्मी पापा की फीलिंग समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्यों वो चीज़ें हमें नहीं दिला पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माँ बाप का होना ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों का नहीं। तो ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में सीखना चाहिए। मुल्क राज आनंद जी जो राइटर हैं इस पूरी कहानी के, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक शिक्षा दी है इस पूरी कहानी से, द लॉस्ट चाइल्ड से। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके आंसर्स अगली बार मैं आप लोग को भेजूँगा। आप लोग उस आंसर्स को अपने फेयर कॉपीज़ में लिखेंगे। हर बच्चे को समझ के लिखना है, आपको अपने तरीके से लिखना है। और इस पूरे चैप्टर को आप अपने बुक में रीड करेंगे बार बार, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको बोलने की कोशिश करेंगे। आपको नेट में भी बताया गया है, उसके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, आप अपनी डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको कोई और अगर प्रॉब्लम है सो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो आज आप लोग ने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू टुडेज़ लेसन। और मुझे पूरा यकीन है सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना बहुत। अगली बार अब हम दूसरा चैप्टर लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे।